علم الواعظ کی کلاس میں خوش آمدید کہتے ہیں. آپ کا شکریہ کہ آج بھی آپ لوگ شریک ہوئے. آج ہم جو گناہ ہے اس کے حوالے سے اس کے بارے میں سیکھیں گے اور کس طرح سے جب ہم واعظ کریں تو ان حصوں کو ہم نے اپنے سامنے رکھنا ہے. یعنی جیسے ہم نے یک طرفہ عہد اور دو طرفہ عہد کو سیکھا، اور واعظ میں یک طرفہ عہد یا دو طرفہ عہد اس حوالے میں اس جگہ پر کس طرح سے موجود ہے اس کی آپ نے ضرور پریکٹس بھی کی ہوگی. آپ نے سوچا ہوگا جو حوالہ آپ نے چوز کیا، جس طرح پچھلی دفعہ پہلے کلمے کی اگزامپل دی، اے باپ ان کو معاف کر، اور اس میں ہم نے دیکھا کہ دو طرفہ عہد اور یک طرفہ عہد دونوں کی موجودگی وہاں پر ہمیں نظر آتی ہے. اب آگے ہماری اس کو ہمیں سمجھنا ہے کہ کس طرح سے یہاں پر یک طرفہ اور دو طرفہ عہد اور کس طرح سے اس کو بیان کیا گیا ہے. اسی طرح ایک جو اہم حصہ ہے کہ ہم گناہ جو ہے اس کو جانتے ہوں، سمجھتے ہوں، تاکہ جب ہم واعظ کریں، کوئی میسج تیار کریں، تو ایسا نہ ہو کہ وہ واعظ ہی گناہ ہو. ایسا نہ ہو. دعا کریں، واعظ کریں، ایسا نہ ہو کہ وہ کیا ہو، دعا نہ ہو بلکہ کیا ہو، گناہ ہو. اور اسی طرح واعظ نہ ہو بلکہ کیا ہو، گناہ ہو، موت ہو. اور اس لیے بڑی اچھی بات خداوند نے فرمائی کہ زیادہ استاد نہ بنے. اس کی وجہ کیا ہے کہ کہیں ایسی چیز نہ ڈیلیور کر دیں جس کے سبب سے ہمارا خدا کے ساتھ کیا ہو جائے، رابطہ ختم ہو جائے، خدا کے ساتھ ہمارا رشتہ ختم ہو جائے، خدا کے ساتھ جوڑنے کی بجائے، خدمت کی بجائے وہ کیا ہو جائے، خدا کے خلاف ایک پورا جو ہے وہ ماحول نہ بن جائے کہ بہت ساری زندگیاں جو ہے اس کا شکار ہو جائے. اس لیے گناہ کو بھی جاننا ضروری ہے. لیکن جو میں نے جملہ کہا کہ واعظ ایسا ہونا چاہیے کہ وہ گناہ نہ ہو، اس میں ڈاکٹرائن کی، فیتھ، ایمان، عقیدے کی پوری سمجھ ہونی چاہیے، تاکہ عقیدے کے خلاف، ایمان کے خلاف، گوسپل یعنی انجیل کے خلاف ہی نہ بیان کر دیں. جیسے کسی کا میں سرمن سن رہا تھا، انہوں نے کہا کہ یسوع مسیح ہمارے کون ہیں؟ سب کہیں یسوع مسیح ہمارے باپ ہیں. تو کیا یہ خدا کے حق میں ہو گیا؟ کیا یہ خدمت ہو گئی؟ کیا یہ سرمن ڈیلیور ہو گیا؟ نہیں، بلکہ کیا ہو گیا، یسوع مسیح ہمارا باپ نہیں ہے. تو کیا ہوا، ہم نے لوگوں کو کیا سکھا دیا کہ یسوع مسیح ہمارا باپ ہے. مجھے کسی نے فون کیا، شاید بھائی انہوں نے 5ویں 6ٹھی تک پڑھا ہو، تو ان کے چھوٹے بھائی نے ان کو یہ بات سکھا دی کہ یسوع مسیح ہمارا کیا ہے، باپ ہے. اس نے دلیل کہہ دی، دیکھو جی اسی کسی نو فادر کہنے ہیں، کسی نو پادری کہنے ہیں، یعنی عام انسانوں نو اسی باپ کہنے ہیں، فادر یعنی باپ، پادری یعنی باپ، تو یسوع مسیح نو نہیں کہہ سکتے. تو جب انہوں نے فون کیا میں کہا نہیں کہہ سکتا، ہے نا، کیونکہ کیا ہوگا، وہ سارا کا سارا آپ کے ایمان، ڈاکٹرائن جو ہے وہ خراب ہو جائے گی اور ایمان ہی درست باقی نہیں بچے گا. اس لیے بڑا ہی محتاط ہو کر ہمیں یہ چیزیں سیکھنی ہیں، تاکہ ہم جب ڈیلیور کریں کسی جگہ پر بھی، سرمن ہو اور یا کسی جگہ ہم ٹیچ کریں، پڑھائیں، بتائیں، تو ہمارا کانسیپٹ جو ہے وہ کلیئر ہونا چاہیے. آج ہم علم الگناہ یعنی ہمارتیا، کیا لفظ ہے، ہمارتیا، ہمارتیالوجی یعنی علم الگناہ، اس کو بھی ابھی چھڑیں گے. ہمارتیا یعنی گناہ کیا ہے، اس کے مختلف پہلوؤں پر غور کریں گے، اور اس میں کچھ 18-19 اصطلاحات ہیں. شاید ساری نہ پڑھاؤں لیکن میں ضرور ان کو چھیڑنا چاہوں گا. گناہ کے جو ہے وہ ایک اصطلاح ہے
एकोनोया जो अबरानी में इस्तेमाल हुई, जिसका मतलब है नावाकफियत, ला इल्मी, नादानी, नावाकफियत, ला इल्मी या नादानी। और इसके लिए नावाकफियत, ला इल्मी और नादानी के लिए शागा एक लफ्ज़ भी अबरानी में इस्तेमाल हुआ, जिसके लिए नावाकफियत, ला इल्मी या नादानी जो है वो इस्तेमाल हो। अगर आप पढ़ें रोमियो पहला बाब 13वीं आयत, साथ और हवाला जात भी लिख दीजिए। दूसरा करंथियों छठा बाब 9वीं आयत, पहला बाब 13वीं आयत। रोमियो उसका पहला बाब उसकी 13वीं आयत। और ए भाइयों, मैं इससे तुम्हारा नावाकिफ रहना नहीं चाहता कि मैंने बारहा तुम्हारे पास आने का इरादा किया, ताकि जैसा मुझे और गैर कौमों में फल मिला वैसे ही तुम में भी मिले, मगर आज तक रुका रहा। हाँ जी, यानी इस सबब से मैं जाऊं ताकि क्या हो, वहां से फल मिले, और ऐसा ना हो कि ना वाकफियत हो, ला इल्मी हो, और मैं जाकर क्या करूं, उनको लोगों को सिखाना शुरू कर दूं या मैसेज डिलीवर करूं या किसी भी बाइबल के हिस्से को खोलना शुरू कर दूं, तो क्या होगा, वहां से फल पैदा नहीं होगा, बल्कि क्या होगा कि खराबी हो सकती है। दूसरी इस्तिलाह जो खता या गलती वो है, वो अबरानी का यही लफ्ज़ शागा, और एक लफ्ज़ है शागाग, दूसरा भी लिख दें। हाँ जी, खता या गलती, शागा या शागाग। लानुमाए जी, हाँ जी जी, यानी खता या गलती के लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया, शागा या शागाग। और एक है लानुमाए, पी साइलेंट है, हाँ जी, PLANOMAI, हाँ जी, लानुमाए यानी गुमराह होने वाली, गलती पर, खता पर जो हमसे गलती या खता का होना। ये मैं वो इस्लाहात बोल रहा हूँ जो हमारतिया में जो है वो पढ़ाए जाते हैं। और इसी तरह भटक जाना या नाफरमानी, पारा कोए, भटक जाना या नाफरमानी, पारा कोए। इसके लिए रोमियो 5वां बाब 19वीं आयत पढ़िए। क्योंकि जिस तरह एक ही शख्स की नाफरमानी से बहुत से लोग गुनहगार ठहरे, हाँ जी, उसी तरह एक ही फर्माबरदारी से बहुत से लोग रास्ता। अगर आप गौर करें कि एक ही शख्स के यानी नाफरमानी से क्या हुआ, सारे लोग क्या हो गए, भटक गए, या जो है वो यानी उस मकाम से गिर गए जिस पर खुदा ने उन्हें रखा था। सो पारा कोए उसके लिए इस्तेमाल हुई। फिर एक और इस्तिलाह है खता या के साथ निशाने से चूकना, है ना, निशाने से चूकना। जब हम हमारा हमारतिया पढ़ाते हैं तो बहुत सारे लोग जब पूछते हैं कि गुनाह क्या है, जैसे आपसे भी अगर आप पूछे कि गुनाह क्या है, तो हम कहेंगे शरीयत की मुखालफत, निशाने से चूकना, जो आम इस्तिलाहात चल रही हैं वही हम बोलते चले जाएंगे। उसमें से यानी खता से निशाने से चूकना यानी चाटा, CHATA, ये अबरानी लफ्ज़ है, और हमारता नोए अबरानी लफ्ज़ है, हमारता नोए, जो इसके लिए चूकना के लिए इस्तेमाल हुआ है। इसी तरह गैर मज़हब होना यानी किसी और मज़हब से भी ताल्लुक़ होना क्या है, गुनाह जो है कि इस्लाम में आता है, जिसके लिए असीबियो एक लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ यूनानी ज़बान में। असीबियो जो है उसका मतलब है किसी गैर मज़हब के साथ जो है वो, असीबियो ASEBIEO,
अडीकिया जो है वो इसके लिए अबरानी लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ, यानी गैर मज़हब में होना, गैर मज़हब से होना। असीबियो या जो अडीकिया है, ये जो है वो बदकार होने के लिए भी लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया, क्योंकि गैर मज़ाहिब का ताल्लुक़ कई ऐसे मज़ाहिब थे जिनका ताल्लुक़ गुनाह के साथ, यानी ज़िनाकारी उनके इबादत में शामिल होती थी। इसलिए अडीकिया या असीबियो जो है वो लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया। नाइंसाफ़ी या बददयानत होना, या बददयानती जो है वो भी एक इस्तिलाह है। नाइंसाफ़ी या बददयानती कौन सी इस्तिलाह है? नाइंसाफ़ी या बददयानती। अवाल जो अबरानी लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ, अवाल AWAL, अवाल। एबार 19वां बाब 15वीं आयत इसके साथ लिख लें, अभी शायद पढ़ने का शायद अवाल, हाँ जी, इसका हवाला आप लिख, एबार 19वां बाब उसकी 15वीं आयत। फिर एक इस्तिलाह है बगावत, हाँ जी, 15 बगावत, हाँ जी। नाइंसाफ़ी या बददयानती के बाद कौन सी है? बगावत। अबरानी में जो इसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ, पेशा। पेशा वैसे तो हम उर्दू में या जो फ़ारसी वर्ड है वो पेशे का मतलब है कोई जो काम करते हैं जो हमारे, लेकिन इसके लिए जो अबरानी में लफ्ज़ है पेशा, उसका मतलब है बागी होना, बगावत कर जाना, बगावत करना, हाँ जी, पेशा जी, हाँ जी, जी जी। और अबरानी में एक और लफ्ज़ है मारा या माराद, मारा MARAH, मारा, बगावत के लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ, या माराद बगावत के लिए। बगावत के लिए सरार भी लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ, सरार। और यूनानी लफ्ज़ सरार अबरानी में स्पेलिंग करो, SARAR, सरार, हाँ जी। सरार, सारा लिख के उर्दू में रे डाल दें तो सरार वो भी हो जाएगा। एपेथियो, एपेथियो यूनानी लफ्ज़ है जो बगावत के लिए इस्तेमाल हुआ है, APEITHEO, एपेथियो और एपेथीस, ये दो लफ्ज़ यूनानी में बगावत के लिए इस्तेमाल हुए। और एक इस्तिलाह है अपोस्टेसी, जो हमने पिछली दफ़ा पढ़ा, हाँ जी, अपोस्टेसिया से, जिसके जो इसी इस्तिलाह में आता है बागी, यानी बगावत कर देना और टोटली तर्क कर देना या बिल्कुल ही मुखालफ हो जाना, मुखालफ ही सिमत में चले जाना, यानी बगावत। अपोस्टेसिया में से अपोस्टेमी भी इसमें से एक इस्तिलाह निकली बगावत के लिए, जो अपोस्टेसिया, अपोस्टेमी और ये लफ्ज़ जो हैं वो हमें उसमें मिलते हैं। फिर इस्तिलाह है बेवफाई, बेवफाई, माआल, माआल यानी अबरानी वर्ड क्या है? माआल। यूनानी माआल लिख लिया। अच्छा, पारापतोमा यूनानी वर्ड, पारापतोमा, पारा यानी पेश भी नहीं करना, लेकिन ये यानी पहले से मालूम होना। पारा पतोमा मीन्स पहले से इस बेवफाई के बारे में खुदा को इल्म था, है ना? इस बेवफाई के बारे में खुदा को क्या था? इल्म था। इसीलिए दो तरफ़ा अहद और एक तरफ़ा अहद उसने उससे पहले कायम किया, है ना? जब हम माआल की जो इस्तिलाह है उसको देखते हैं तो इसमें से हमें ये इल्म होता है, पारापतोमा मीन्स के पहले से खुदा को इस बेवफाई का इल्म
था। फिर बेरारहवी, अबरानी वर्ड आवा, आवा, इसका मतलब झुकना या बल खा जाना, कुंडली मारना। बेरारवी बड़ा खतरनाक मतलब है कि बल खा जाना, और इससे परेशानी और गुनाह के बायस इंसान झुक जाता है, बेरारवी पर निकल जाता है। कराहियत एक और इस्तिलाह है। तौबा यानी अबरानी वर्ड कराहियत के लिए, हाँ जी, तौबा, तौबा और शिफ्टस, तौबा और शिफ्टस, शिफ्टस और शिफकट भी, मतलब अबरानी लफ्ज़ जब हम पढ़ेंगे तो शिफ्टस या शिफकट जो है वो इसके लिए, यानी इसका मतलब है बुत प्रस्ती करना, जिन्स प्रस्ती करना, जादूगरी जनात की का आशना होना, साहिर होना, जो इस्तिस्ना 18वें बाब में हमने पढ़े थे। 18वां बाब उसकी 9वीं आयत से पढ़िए, ये पढ़ ही लेते 9वीं आयत से। इस्तिस्ना 18वां बाब, हाँ जी, इसके लिए जो लफ्ज़ कराहियत है वो 12वीं आयत से 14वीं में इस्तेमाल हुआ, जो ये लफ्ज़ है तौबा या शिफ्टस या शिफकत। इस्तिस्ना 18वां बाब बड़ा मशहूर है हमारी कलीसिया में, तो बड़ा मशहूर मतलब ये 9वीं आयत से पढ़ लें। हाँ जी, जब तू उस मुल्क में जो खुदावंद तेरा खुदा तुझको देता है पहुंच चले, तो वहाँ की कौमों की तरह मकरूह काम करने न सीखना। वहाँ की कौमों की तरह मकरूह काम, हाँ जी, आगे। तुझ में हरगिज कोई ऐसा ना हो जो अपने बेटे या बेटी को पाक नहीं करे, या फालगीर या शगुन निगराने वाला या अफसूंदर या जादूगर या मंत्री या जिन्नात का आशना या रमाल या साहिर, हाँ जी, क्योंकि वो सब जो ऐसे काम करते हैं खुदावंद के नज़दीक मकरूह हैं जी, उनकी मकरूह हाँ, किस सबब से, खुदावंद तेरा खुदा उनको तेरे सामने से निकालने। हाँ जी, कराहियत है खुदा को इनसे, क्या है खुदा को, क्या है, कराहियत है। और ये 12वीं आयत से 14वीं आयत तक ये भी इस पढ़िएगा तो वो सब जो ऐसे काम करते हैं खुदावंद के नज़दीक मकरूह हैं जी, और इन्हीं मकरूहात के सबब से खुदावंद तेरा खुदा उनको तेरे सामने से निकालने पर है। जी। एक और इस्तिलाह है जो फसाद या शरारत, हाँ जी, फसाद या शरारत, इसके लिए लफ्ज़ रेशा जो है वो अबरानी में इस्तेमाल हुआ। रेशा RESHA, शरारत। और इसका मतलब जो ढीला कर देना, जोड़ उखाड़ देना, शरारत ढीला कर देना, कोई ऐसी शरारत करें कि क्या हो जाए, जोड़ उखड़ जाए, है ना। और रेशा इसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ। और ये यशायाह 57 बाब उसकी 20वीं 21वीं आयत लिख लें साथ, अय्यूब 3 बाब 17वीं आयत साथ लिख लें। यशायाह 57 बाब उसकी 20वीं और 21वीं आयत, अय्यूब 3 बाब 17वीं आयत। बदी या बुराई, बदी या बुराई, एक अय्यूब 3 बाब 17वीं आयत। जब हम इंडिया की एक एजेंसी है जो पाकिस्तान में आकर क्या करती है, शरारतें करती है, बदी करती है, बुराई करती है ना, रा, उसके लिए अबरानी वर्ड जो इस्तेमाल हुआ रा, इसके लिए बदी बुराई के लिए अबरानी वर्ड रा। और इसका मतलब है कि खुराक का बदबूदार हो जाना, बोसीदा हो जाना, इस तरह की, और या ख़तरनाक जानवर। इसके लिए यर्मिया 42वां बाब उसकी 6ठी आयत लिख लें, और आमूस 6ठा बाब 3री आयत
इसके साथ लिखे। इस्तिस्ना 30वां बाब उसकी 15वीं आयत भी मौजूद है। इस्तिस्ना 30वां बाब 15वीं आयत मैं जी यर्मिया 42वां बाब 6ठी आयत, आमूस 6ठा बाब 3री आयत, इस्तिस्ना 30वां बाब 15वीं आयत। और इसी तरह एक इस्तिलाह है जुर्म। अब्रानी लफ्ज़ आशाम, अल्फ मदाश शीन अल्फ शाम मीम, आशाम अब्रानी लफ्ज़ है आशाम जुर्म के लिए। और यूनानी प्लेमेलिया आशाम और यूनानी में क्या है प्लेमेलिया। ये जुर्म या सज़ा के लायक होने का इजहार है। इंसान जो है वो सज़ा के लायक साबित हो गया। मत्ती 5वां बाब यानी 21वीं और 22वीं आयत आप इसके साथ ज़रूर लिख लीजिए। और पहला क्रंथियों 11वां बाब 27वीं आयत भी इसके साथ लिख सकते। याकूब 2 बाब उसकी 10वीं आयत, 2 बाब उसकी 10वीं आयत। दुख और तकलीफ, गुनाह के लिए एक लफ्ज़ इस्तेमाल हुई दुख तकलीफ। आवान अबरानी लफ्ज़ आवान, हाँ जी आवन या आवान, AVEN कर लें, अलिफ मद आड वो नून लिख लें, आवन या आवान। आवन के मानी यानी मुसीबत के हैं, यानी दुख और तकलीफ यानी बड़ी मुसीबत आ गई। होसिया 4 बाब 15वीं आयत भी आप इसके लिए जो है वो लिख सकते हैं। बुत परस्ती के बायस, हाँ नहीं होसिया उसका 4 बाब 15वीं आयत, बुत परस्ती के बायस दुख और तकलीफ मुसीबत आई। अगर आप मिस्र में चले जाएं तो आवन आपको नज़र आता है कि उनके गुनाह के सबब से उन पर क्या है मुसीबत रही। पहले कभी मक्खियाँ आ गई, कभी फोड़े निकल आए, कभी मच्छर आ गए, है ना, और कभी पानी खून हो गया, कभी जानवर मारे, पिलौठे मारे गए। किसके सबब से, है ना, गुनाह के सबब से। उनके अंदर जो गुनाह था वो उसके। सो ये मुख्तलिफ इस्लाहात जो इस्तेमाल हुई उसको हमने देखा। लेकिन ये सारी इस्तिलाहात जो हैं इनको जानने के बाद अभी भी ज़रूरत है कि हम गुनाह को जानें कि वो क्या चीज़ है। लेकिन जब आप कोई पैसेज चुनते हैं, हवाला चुनते हैं, वहाँ पर कौन सी चीज़ मौजूद है उस पर हमें गौर करना चाहिए। उसमें कहीं गुनाह के किसी एक इस्तिलाह का जिक्र तो नहीं किया गया। जब आपको याद है कि हमने तोहम परस्ती पढ़ी, जब हम इस्तिस्ना 18वें बाब पर पहुँचे तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी। जब हम यसाया 2 बाब 5वें आयत पर पहुँचे तो हमने फिर वो सारी चीज़ें पढ़ी कि ये कौन कौन सी चीज़ें हैं और उनको हमने उस पर गौर किया। लेकिन गौर करना है, इसको 2 हिस्सों में तकसीम करना। जितनी भी इस्तिलाहात हैं इनको कितने हिस्सों में, 2 हिस्सों में। नंबर 1 शख्सी गुनाह और नंबर 2 मरूसी गुनाह। नंबर 1 शख्सी गुनाह और नंबर 2 मरूसी गुनाह। शख्सी गुनाह पर्सनल सिन, शख्सी गुनाह यानी पर्सनल सिन, और मरूसी गुनाह ओरिजिनल सिन। क्या लफ्ज़ है, ओरिजिनल सिन। दोनों को गौर से, सारी इस्तिलाहात अगर आप भूल जाएं तो ये 2 नहीं भूलनी, सारी आप चाहे भूल भी जाएं तो कोई मसला नहीं, लेकिन ये 2 इस्तिलाहात जो है यानी पर्सनल सिन और ओरिजिनल सिन, इन 2 इस्तिलाहात को हमने नहीं भूलना। और इनके लिए इंसान को इलाज और माफ़ी चाहिए। इन पर्सनल सिन और ओरिजिनल सिन के लिए क्या चाहिए, इलाज और माफ़ी चाहिए।
یہ بھی دونوں چیزیں آپ نے نہیں بھولنی ہیں. علاج اور معافی کیا ہوتا ہے؟ سرمن میں ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ نے گناہ نہیں کرنا، آپ نے شراب نہیں پینی، آپ نے قربانی کا گوشت نہیں کھانا. آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ علاج کر رہے ہیں کہ معافی دے رہے ہیں؟ آپ پھنسا رہے ہیں بندے کو. جب آپ کسی کو کہیں گے آپ نے گناہ، وہ سب کو ڈر جائے گا بندہ، ہو اچھا میں تو گناہ نہیں کرنا یار، پر میرے کو ہو جاتا ہے نا. وہ کیا ہے؟ شکست خوردہ لائف. کہ جب میں کہوں جی آپ نے سگریٹ نہیں پینا، ٹھیک ہے، یا میں آپ کو کچھ اور، یہ کیا ہے کہ ہم کمزور سرمن جو ہے اس سے اجتناب کریں. ہم کیا کریں؟ غور کریں شخصی گناہ اور موروثی گناہ پر. ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے. شخصی گناہ ہم بعد میں کھولیں گے. پہلے ہم جو اوریجنل سن ہے اس کو ہم پوری طرح سمجھتے ہیں، اوریجنل سن، اور اسی میں ہی ہمیں اس کے نتائج میں شخصی گناہ جو ہے وہ بھی ہمارے اندر نظر آئے گا. اور آپ کے سرمن میں علاج اور معافی، اس کا اظہار بہت ہی کھل کے ہونا چاہیے. علاج اور معافی، کیونکہ انسان کو شکست خوردہ زندگی کے لیے خدا نے بنایا عالم سے پیشتر نہیں چنا. خدا نے اس لیے نہیں چنا کہ انسان خود کیا کرے؟ اپنا علاج کرے، معافی پائے. ایک جگہ مناظرہ تھا تو وہ ہمارے مولوی اقبال صاحب ہیں وہاں پر لیا میں، تو ان سے جب بات چیت شروع ہوئی تو میں نے کہا کہ انسان کو گناہ کی بیماری ہے. میں آپ سے سیکھنے آیا ہوں کیا اس کا معافی اور علاج کس طرح سے. انسان کو کیا ہے؟ گناہ کی بیماری ہے. تو آپ مجھے اسلام میں سے یا قرآن مجید میں سے آپ نے مجھے کیا سکھانا ہے؟ اس کا علاج اور اس کی معافی. تو انہوں نے کہا کہ یہ تو بڑا آسان ہے. کیا ہے؟ یہ تو بہت آسان ہے. خدا نے اللہ تعالیٰ نے دو راستے دکھا دیے، ایک اچھا راستہ ایک برا راستہ. اب آپ کی مرضی ہے کہ آپ کسی پر بھی جائیں. تو میں نے انہیں کہا کہ میں معذرت کروں گا، میں ایسے خدا کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں جو دو راستے دکھا دے اور پھر انسان کو چھوڑ دے اور وہ کیا کرے؟ پہنچے نہ پہنچے تو نہ پہنچے. مجھے تو وہ خدا چاہیے جو مجھے کیا کرے؟ لے کر جائے یہاں سے. مجھے کون سا خدا چاہیے؟ جو مجھے یہاں سے لے کر جائے. اور اس لیے یسوع مسیح نے کہا کہ میں جاتا ہوں اور تمہارے لیے جگہ آ کر کیا کروں گا؟ تم کو بھی ساتھ لے لوں گا، اور جہاں پر میں ہوں وہاں پر تم بھی رہو. اس لیے مجھے وہی خدا چاہیے جو مجھے یہ کہے کہ جہاں پر میں ہوں وہاں پر تم بھی رہو، اور وہ مجھے دو راستے دکھا کر تماشا دیکھتا رہے. میں ایسے خدا کو ماننے سے معذرت کرتا ہوں. اسی طرح مسیحی بھی ہیں. ہماری اسلامی گوسپل اس معاشرے میں نا، یہاں پر ہماری گوسپل کیا ہو گئی ہے؟ اسلامی سے کیا کرنی ہے؟ وہ شریعت پر زیادہ تکیہ کرتی ہے، وہ نیک مال پر زیادہ تکیہ کرتی ہے، وہ گناہ چھوڑنے پر، وہ حرام اور حلال پر تکیہ کرتی ہے. اس لیے ہماری گوسپل کیا ہو گئی؟ وہ تقریباً ہم نے جو 3 چیزیں پڑھی تھی کہ ہمارے سرمن میں کیا مس ہو گیا؟ 3 چیزیں. ہاں، کون سا؟ نمبر 1 16 گریٹا، 16 فیڈز اور 16 اسکرپچر. کہیں بھی خدا نے یہ علاج نہیں بتایا کہ کیا کرنا ہے کہ انسان شکست خوردہ زندگی گزارے، کیونکہ یہ ہمارے سرمن میں سے کیا ہے؟ باہر نکل گیا ہوا ہے. ہماری پہچان دراصل جو اوریجنل سن اور جو پرسنل سن ہے اس کی پہچان یہاں پر نہیں کی جاتی. آپ گناہ کی ڈیفینیشن کسی بھی کونے میں جا کر کسی بھی شخص سے پوچھیں، وہ آپ کو کھولتے ہوئے ڈرے گا، یا پتہ نہیں شاید اس کو اس کا علم نہیں ہوگا. وہ یہی بتائے گا کہ چوک جانا نشانے سے، شریعت کی مخالفت، خدا کی مخالفت، یہ وہ اٹرم بٹرم.
तो ये नहीं है बीमारी। बीमारी क्या है? ओरिजिनल सिन, उसको हमने समझना है। मेरे साथ निकालिए पैदाइश पहला बाब, उसकी 26-27वीं आयत, और उसके साथ ही हम पैदाइश का तीसरा बाब, 5वां बाब और उसकी पहली आयत से भी जो है वो देखेंगे। अभी हम सीखने लगे हैं कि ओरिजिनल सिन क्या है। फिर खुदा ने कहा कि हम इंसान को अपनी सूरत पर अपनी शबीह की मानद बनाएं, और वो समंदर की मछलियों और आसमान के परिंदों और चौपायों और तमाम जमीन और सब जानदारों पर जो जमीन पर रेंगते हैं इख्तियार रखें। वो क्या करें? आओ हम क्या करें? इंसान को अपनी सूरत, अपनी शबीह पर बनाएं। और क्या करे वो? उसको फिर खुदा ने बरकत दे दी। इसी तरह 5वां बाब, पैदाइश 5वां बाब, उसकी पहली 3 आयात जो हैं वो भी देखिए। आदम का नस्बनामा है, जिससे खुदा ने आदम को पैदा किया तो उसे अपनी शबीह पर बनाया। उसे अपनी शबीह पर बनाया। जी आगे। नर और नारी को पैदा किया, दोनों मियाँ बीवी को अपनी शबीह पर बनाया। जी। नर और नारी उनको पैदा किया और उनको बरकत दी, और जिस रोज वो खल्क हुए उनका नाम आदम रखा। जी। तीसरी आयत भी। और आदम 130 वर्ष का था जब उसकी सूरत और शबीह का एक बेटा उसके यहाँ पैदा हुआ, और उसने उसका नाम क्या रखा? सेत रखा। उसकी सूरत और शबीह का। इसी 5वें बाब की पहली 3 आयात में 2 दफा लफ्ज़ शबीह इस्तेमाल हुआ। पहले क्या इस्तेमाल हुआ कि वो खुदा की सूरत शबीह पर, और दूसरा क्या लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ? वो आदम की सूरत शबीह। सेत जो था वो आदम की सूरत शबीह, और फिर आदम के लिए 130 बरस का लफ्ज़ भी इस्तेमाल कर लिया। इसका मतलब ये है कि आदम की सूरत शबीह तब्दील हो चुकी थी। यानी पहले वो किसकी सूरत शबीह पर था? खुदा की सूरत शबीह पर था। जब वो 130 साल का लिखा है तो उसकी इसका मतलब है कि उसकी सूरत शबीह को बदले हुए 130 साल हो चुके, खुदा की सूरत शबीह से बदले हुए। क्योंकि जब तक वो खुदा की सूरत शबीह पर रहा गिनती नहीं थी, क्योंकि मरना नहीं था। वो कितने साल जिया ये कोई शख्स अंदाजा नहीं लगा सकता। वो कितने वर्ष, 2 लाख वर्ष, 3 लाख वर्ष, 1 करोड़ वर्ष के बराबर जिया, हजारों साल के बराबर जिया, ये कोई शख्स उसका अंदाजा। लेकिन हमें आगे जाकर थोड़े थोड़े सी इशारे ज़रूर मिलते हैं कि वो लिमिट, वो अनलिमिटेड, मतलब वो यानी ऐसा टाइम है जैसे जिसको हम काउंट नहीं कर सकते। हाँ जी, वो बहुत लंबा चौड़ा टाइम है। क्यों? आदम ने शहर बसा दिए। आदम की औलाद इतनी थी कि कायन नूद के इलाके में भाग गया। कायन कहाँ भाग गया? वहां से क्या ले आया? बीवी ले आया। यह हमें, और ये इसी जो पहला हवाला हमने पढ़ा उसमें उसकी ब्लेसिंग के लफ्ज़ गौर से सुनने हैं, पढ़ने हैं, गौर करना है कि क्या है? पलो और बढ़ो, और ज़मीन को क्या करो? मामूर और महकूम करो। खुदा ने इब्तिदा में जितने भी ऑर्डर किए क्या कहा? रोशनी हो जा। क्या हुआ? हो गई? हुई। फिर सुबह हुई, शाम हुई, और पहला दिन हुआ। फिर खुदा ने एक और ऑर्डर दिया, है ना? फिजा हो, पानी एक जगह जमा हो, चरिंद परिंद बने। ऑर्डर, हुक्म। क्या हो रहा था? होता था। तो जब हुक्म दिया पलो बढ़ो और जमीन को मामूरों में हुकुम करो, क्या हुआ? फिर चुप कर गए। क्या हुआ? 2 किस्म की तख्लीक है। एक तख्लीक जो एक दफ़ा, इस्तकरारी तख्लीक, एक ही दफ़ा, और दूसरी तख्लीक जारिया। और ये जो ऑर्डर था, पलो बढ़ो और ज़मीन को क्या करो? मामूर और महकूम, ये कौन सी है? तख्लीक जारिया। सो अभी हम गुनाह की तरफ जो है वो ओरिजिनल से, सो क्या पढ़ा कि आओ हम क्या करें? इंसान को अपनी सूरत शबीह पर बनाएं। और सूरत शबीह के लिए मुख्तलिफ अल्फाज जो उर्दू लुगत या हम, ताकि आसान हो सके, है ना? जैसे उसके मतलब है तरह, तौर, तरीक, ढंग, खाका,
ढांचा, तदबीर, तजवीज़, मानद होना, मिसल होना, मुख्तलिफ इसके क्या है मीनिंग्स हैं। लेकिन जो हम एक लफ्ज़ है अरबी का वो इस्तेमाल करेंगे इसकी इस्तिलाह को समझने के लिए, अरबी ज़ुबान का लफ्ज़, और वो है फितरत। क्या लफ्ज़ है? फितरत, और इंग्लिश में इसको नेचर कहते हैं। फितरत, आओ हम इंसान को अपनी फितरत पर बनाएं, आओ हम क्या करें, इंसान को अपनी फितरत पर बनाएं। और जो सूरा रोम है 30वीं सूरा उसकी 30वीं आयत, वहाँ पर ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया कि अल्लाह ताला ने इंसान को अपनी फितरत पर, 30 के नीचे 30 डाल दें, दोनों सूरा नंबर 30 है और आयत नंबर भी 30 ही है, ये सूरा रोम। और ये लफ्ज़ जो है फितरत, ये हमें इसको समझने, ओरिजिनल सिन को समझने पर क्या करेगा, आसानी बख्शेगा। खुदा की फितरत की चंद चीज़ें हम लेते हैं ताकि हम क्या समझ सकें, गुनाह क्या है, ओरिजिनल सिन, मारूसी गुनाह क्या है, इसको हम जानें। और याद रखिए कि अपनी विरासत को अपनी ज़िंदगी में से निकालना नामुमकिन होता है। अपनी विरासत को, हाँ जी, इंसान की विरासत में क्या था, गौर कीजिए, गुनाह से पहले खुदा ने इंसान की विरासत में क्या फूंका, उसने जिंदगी फूंकी। जब उसने फूंकी तो बीच में मौत भी चली गई थी? नहीं, क्या थी, खुदा की ने अपनी फितरत, यानी खुदा की फितरत में जिंदगी, क्या है, जिंदगी, और जिंदगी फूंकी, और इंसान जीती जान हुआ। जब तक खालिक जिंदा है तब तक मखलूक भी जिंदा रहेगी। क्यों? क्योंकि खालिक जिसने फूंका है उसकी फितरत में क्या है, जिंदगी है। और फिर उसने इंसान पर क्या फूंका, पाकीज़गी फूंकी, क्योंकि हमारा खुदा क्या है, खुदा की विरासत में, उसकी फितरत में क्या है, पाकीज़गी है। और इसलिए जब इंसान पर फूंका तो क्या गया, पाकीज़गी, इंसान के अंदर क्या थी, पाकीज़गी थी। और फिर तीसरा हम देखते हैं कि खुदा आज़ाद मर्जी पर है, उसकी फितरत में है, उसकी फितरत में क्या है, आज़ाद मर्जी है। और इंसान पर जब फूंका गया तो क्या फूंका, आज़ाद मर्जी फूंकी। सो इंसान की और खुदा की फितरत की 3 अहम चीज़ें हमने ली, और ज़्यादा नहीं लेते। 3 कौन कौन सी, जिंदगी, पाकीज़गी और आज़ाद मर्जी। इंसान पर क्या फूंका, जिंदगी, पाकीज़गी और आज़ाद मर्जी। और ये खुदा और इंसान की फितरत क्या थी, एक जैसी थी, इसलिए मिलते जुलते थे, इकट्ठे रहते थे, खुश रहते थे। खुदा बरकत पर बरकत उसको देता था। और क्या हुआ, ये जो आखिरी है आज़ाद मर्जी, आखिरी, इसके लिए जो अभी हमने एक टर्म भी पढ़ी कि खुदा में के नॉलेज में था कि वो बगावत होगी, नाफरमानी खुदा के नॉलेज में था, लेकिन आज़ाद मर्जी पर तख्लीक करने के लिए ज़रूरी था कि कोई हुक्म दिया जाए। इंसान को क्या दिया जाए, एक हुक्म दिया जाए। अगर कोई हुक्म नहीं होता तो पहली 2 चीज़ें जो फूंकी, इंसान उस पर क्या होता, फिक्स होता। क्या होता, इंसान उस पर फिक्स होता। लेकिन खुदा की सूरत शबीह पर ना होता, खुदा की फितरत पर ना होता, क्योंकि खुदा क्या है, आज़ाद मर्जी रखता है, और इंसान क्या हो जाता, फिक्स हो जाता। अगर खुदा एक हुक्म ना देता तो फिर आज़ाद मर्जी पर इंसान नहीं था, उसको आज़ाद मर्जी दी गई कि वो इस हुक्म को हमेशा अपनी ज़िंदगी में क्या करे, कायम रखे, ताकि उसके अंदर क्या है, ज़िंदगी, पाकीज़गी हमेशा के लिए कायम रहे। लेकिन क्या हुआ, इंसान ने आज़ाद मर्जी इस्तेमाल की। पूछा कि क्या बाग का कोई फल नहीं खा सकते? तो कैसी गेड़ी थी उसने, वो जो एक इस्तिलाह ने पढ़ी जिसका मतलब था कुंडली मार लेना ना, या बल खा जाना। और कैसा बल दिया बात को उसने, क्या कहा, क्या तुम
क्या तुम बाग के किसी तरफ का फल नहीं खा सकते हो? नहीं नहीं, सारे खाई दे, है ना। लेकिन वो जो दरमियान में है, नेको बद की पहचान का दरख्त, उसके बारे में कहा क्या है? कहा है खुदा ने कि ना खाना ना छूना। और तब तक याद रखिए जो हमने एक तरफा अहद पढ़ा था, उसके कायम होने का, एक तरफा अहद जो हमने पढ़ा था, उसका कायम होना इस हुक्म के साथ जुड़ा होगा कि जब तक ये हुक्म क्या होगा? पूरा होगा, तब तक एक तरफा अहद क्या होगा? कायम रहेगा। और ये इस तरह की फितरत इंसान की हमेशा कायम रहेगी। लेकिन क्या हुआ? जब हुक्म टूटा तो नतीजा क्या हुआ? नेचर चेंज हो गई। नेचर क्या हो गई? तब्दील हो गई। फितरत क्या हुई? बदल गई। इंसान की फितरत तब्दील हो गई। खुदा ने बताया था कि जिस दिन तूने खाया तू मरा, यानी मैंने तो जिंदगी फूंकी, लेकिन वो जिंदगी क्या होगी? पीछे हो जाएगी। जिस दिन तूने ये एक तरफा अहद तोड़ा, उस दिन क्या होगा? कि क्या होगा? गद्दी वेखण लग पे, सोचने लग पे, कोई सोची साची पै गए हो, हाँ जी वापस ले आना पड़ेगा, वापस ले आना पड़ेगा। हाँ जी, क्या हुआ? हाँ, मौत आ गई। और फितरत कैसी हुई? जिंदगी की जगह क्या आ गई? मौत आ गई। जिंदगी की जगह क्या आ गई? मौत। और पाकीज़गी की जगह क्या आ गई? बदी आ गई। और फिर आजाद मर्जी की जगह क्या आ गया? गुनाह की गुलामी आ गई। ये क्या है? ये हम किसको समझ रहे हैं? ओरिजिनल सिन। किसको समझ रहे हैं? ओरिजिनल सिन को। अब खुदा की सूरत शबी पर होना यानी फितरत पर होना, इस तरफ ये 3 लफ्ज लिखे हैं। और इंसान की फितरत और सूरत शबी कैसी हो गई, वो दूसरी तरफ लिखा है। ये क्या थी? इंसान की सूरत शबी कैसी? मौत, बदी और गुनाह की गुलामी। सो गुनाह क्या है? ओरिजिनल सिन क्या है? खुदा और इंसान की फितरत के तजाद को गुनाह कहते हैं। क्या कहते हैं? खुदा और इंसान की फितरत के तजाद को क्या कहते हैं? गुनाह कहते हैं। और यही ओरिजिनल सिन है। यही क्या है? ओरिजिनल सिन है। उसमें मौत पाई जाती है इंसान में, उसमें बदी पाई जाती है, उसमें गुनाह की गुलामी पाई जाती है। इसलिए आदम जब 130 साल का हुआ, गिनती शुरू हो चुकी थी। जब उसकी क्या हुई? सूरत शबी बदल गई, तो क्या शुरू हो गया? गिनती शुरू हो गई। जब वो 130 साल का हुआ तो सेत पैदा हुआ। और वो किसकी सूरत शबी का था? वो आदम की सूरत शबी का था। अब गौर कीजिए कि अगर हम सरमन में ये कह रहे हो कि भाई गुनाह छाड़ दो, कैसा इलाज है? इलाज कैसा है? गुनाह ना करया करो, कैसा इलाज है? ये इसी तरह के डॉक्टर जो है ना वो फीस ले लिया करे, है ना, और अंदर जैसे ही बंदा जो हाँ जी खांसी लगी, खांसी छाड़ दो भाई, इतना क्या के भेज दिया करे, है ना। फिर बीमारी का इलाज होता है, गला नहीं जाती और बीमारी क्या है? खांसी नजला, खांसी नजला। क्योंकि हम गुनाह को खांसी नजला की तरह पेश करते हैं कि चूक जाना निशाने से शरीयत की मुखालफत, है ना, हल्का फुल्का नजला जुकाम, पीरिटोन खावांगे, एक रात सोवांगे, सुबह उठांगे फ्रेश होवांगे, है ना, ऐसे ही होगा ना। लेकिन ये कौन सी बीमारी है? जिस दिन तूने खाया तू मरा, कोरोना आ बढ़िया, हाँ जी, कैंसर, ऐसी बीमारी जिसका नतीजा क्या है? मौत है, ऐसी बीमारी है। और छोड़ के दिखाएं, बीमारी छोड़ के दिखाएं, हो सकता है? रिफत को शुगर है, मैं कहता हूं रिफत छाड़ दो यार, शुगर छाड़ दो, तो सीखे ना, ऐसे ही ना। अच्छा, सारे शुगर फैलो बड़े जबरदस्त होते हैं जी, आपस में बैठ के गपशप बड़ी जबरदस्त लगाते हैं, शुगर फेलोस, है नी जिनको जिनको वो होता है यूरिक एसिड,
वो यूरिक एसिड फैलोस, हाँ जी, वो 10 दिन यार इधर करके पीड़ होती है, इतने करके ऐ सोच जाता है ना, तो यार गोडा रह गया। हाँ जी, ये क्या है? यूरिक एसिड फैलोस है। सारे ही फिर, लेकिन गौर करें, छोड़ते क्यों नहीं आप छोड़ते, मतलब इतना आसान। इसका मतलब है कि हमें गुनाह को ओरिजिनल से, हमारी फितरत में है। कहां पर है? हमारी फितरत में है, और इसलिए शख्सी गुनाह अपीयर होता है ना, हमारी फितरत में है, हमारी फितरत बदल चुकी है। और इतना बड़ा प्रोजेक्ट जो इमैनुअल प्रोजेक्ट खुदा ने बनाया, उसका मकसद ये था कि इंसान को उसकी सूरत शबीह से क्या किया जाए, वापस खुदा की सूरत शबीह पर लाया जाए। इसलिए नजात क्या है? पिछले दिनों बिहाड़ी गए तो वहाँ भी मुनाजरा टाइप हो गया, कोई ग्रुप आ गया और चर्च में हमने कहा कि आप सिर्फ नजात बताएं। वो 3 घंटे के 2.5 घंटे वो बंदा जो है शोर डालता रहा, बार बार नीचे से यूथ पूछे जी नजात बताएं। हाँ जी, वो उसको समझना है मैं नजात क्या नजात होती है जी, कि हम गुनाह करते हैं, हमसे गुनाह होता है, और उसको समझना है। अब नेक माल पे कभी चला जाए, कभी शरीयत पे चला जाए, कभी कहाँ पर, तो वो क्या हुआ आखिर 2.5 घंटे के बाद पता लगा कि आपको नजात का पता नहीं है। यानी 2.5 घंटे अगर आप सरमन दें और आप ये ना बता सके नजात है क्या, इसका मतलब है कि आपको अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। यहीं पे क्लियर होता है नजात क्या है। ये वाली फितरत जो खुदा की फितरत है, इस पर वापस आना क्या है? नजात है। और बंदे को तो आया नहीं जाता जी। अगर आ सकते इंसान बंदे से मौत अंदर से निकल जाएगी? नहीं। बंदे से वो जो बदी है वो निकल जाएगी? नहीं। वो आजाद मर्जी पर वापस आ जाएगा? नहीं, वो ही होता ही नहीं उससे। वो किको गल दसी जाता, नेचर के नॉट बी चेंज, नेचर के नॉट बी चेंज, फितरत नहीं बदलती। ऐसे ही है ना। और हम आम तौर पर सोचते हैं कि इंसानों यार इसकी फितरत में ना गप्पे मारना बदली इसकी फितरत में फला है, और हम और एक दूसरे के फितरत नहीं बदलनी है। मतलब ये आम इस्लाह हम ले रहे होते हैं, लेकिन ये नेचर कैन नॉट बी चेंज, यानी फितरत तब्दील नहीं होती। दरअसल इस फितरत की बात है, ये इंसान से तब्दील नहीं होती। बंदा घंटा एक गप्पा मारना तो छाड़ ही सकता है ना। अगर 1 घंटा मीटिंग हो वो ना मारे, है ना, तो उसने कुछ देर तो फिर काबू बाहर जाके, चाहे घर में जाके अकेला कमरे में बैठ के शुक्र है उथे नहीं गप्पा मारनी सीधे कल ही मार लेने यार 2 घंटे गप्पा मार ले, कोई गल नहीं। लेकिन ये जो नेचर है, फितरत है, ये इस फितरत की बात है। इसलिए इंसान के हाथ खड़े हैं। खुदा की ज़रूरत जो इंसान से नहीं होता वो खुदा से मुमकिन है। इसलिए इंसान को ये 2 जो शख्सी गुनाह है उसको भी हम ज़रूर समझ लेते हैं। 5 मिनट लगाए, एक बात ने मुझे कहा था जरा जल्दी फर्क करा दीजिएगा हस्बैंड से। आज वैलेंटाइन डे। हाँ जी, आज वैलेंटाइन ओहो अच्छा चले शख्सी गुनाह के लिए 5 मिनट जी जल्दी क्योंकि ओरिजिनल सिन जब समझ आ गया तो शख्सी गुनाह तो बड़ी जल्दी 3 दायरे बना दीजिए। पहला ग्रंथियों उसके साथ लिख भी दीजिए। 2 बाब 14वीं आयत, पहला दायरा गोल दायरा, और ये 3 दायरे आप भी बना लें। इसमें हम शख्सी गुनाह, और फिर 15वीं 16वीं, और फिर 30 बाब की पहली 3 आयत। हाँ जी, पहला दायरा आप देख रहे हैं, रेफर ने बना दिया होगा। उस दायरे में ये दायरा क्या है? किसी एक ज़िंदगी को क्या करता है? ज़ाहिर करता है। और कुर्सी उसमें जो है उसका मतलब है ज़िंदगी का इख्तियार, और इसके ऊपर खे यानी खुदी या ईगो आप जो है वो भी ये लफ्ज़ लिख सकते हैं। और
जो सलीब है वो दायरे से बाहर, यानी यसु मसीह ज़िंदगी से कहाँ पर है? बाहर है। और ये शख्स जो है ओरिजिनल सिन के साथ साथ शख्सी गुनाह का भी जो है ना वो पूरी तरह शिकार है। इसको हम पढ़ लेते हैं, पहला करंथियों 14 दूसरा बाब 14वीं आयत। मगर नफसानी आदमी खुदा के रूह की बातें कबूल नहीं करता, क्योंकि उसके नज़दीक क्या है? ये बेवकूफ़ी की बातें हैं, और ना वो उन्हें समझ सकता, क्योंकि ये रूहानी तौर पर परखी जाती हैं। फिर भी पढ़ दीजिए। मगर नफसानी आदमी खुदा के रूह की बातें कबूल नहीं करता, क्योंकि वो उसके नज़दीक बेवकूफ़ी की बातें हैं, और ना वो उन्हें समझ सकता है, क्योंकि वो रूहानी तौर पर परखी जाती। ये नफसानी क्यों है? ये खुदा पर बिल्कुल भी बिलीव नहीं करता, खुदा इसकी ज़िंदगी से बाहर है। क्रॉस बाहर होने का मतलब कि ज़िंदगी से खुदा जो है वो बाहर है, इसलिए वो क्या करता है? खुदा की बातों को वो समझ, नफसानी आदमी है, उसकी ज़िंदगी का इख्तियार अपने ही हाथ में है। और फिर दूसरा दायरा यानी 15वीं और 16वीं आयत में लिखा है, मगर रूहानी आदमी सब बातें परख लेता और खुद किसी से परखा नहीं जाता। खुदा, हाँ, किसने जाना कि खुदावंद की अकल को किसने जाना कि उसको तालीम दे सके, मगर हम में मसीह की अकल है। जी पढ़िए। खुदावंद की अकल को किसने जाना कि उसको तालीम दे सके, मगर हम में मसीह की अकल है। हाँ जी, पहले भी पढ़िए। लेकिन रूहानी शख्स सब बातों को परख लेता है, मगर खुद किसी से परखा नहीं जाता। हाँ जी। खुदावंद की अकल को किसने जाना कि उसको तालीम दे सके, मगर हमें मसीह की अकल। और गौर कीजिए कि ये क्या है? ये इसके लिए लफ्ज़ रूहानी शख्स इस्तेमाल हो, और इसके अंदर भी ओरिजिनल सिन का जो है वो जो उसकी फितरत है वो मौजूद है। यानी खे कहाँ पर है? कुर्सी से नीचे। और कुर्सी पर कौन है? यानी अल-मसीह खुदा के कब्ज़े में है, ताकि क्या हो? वो शख्सी गुनाह से बचा रहे और खुदा के इख्तियार में, अल-मसीह के इख्तियार में जो है वो ज़िंदगी बसर करे। और फिर तीसरा शख्स जो है वो भी हम देखते हैं। ए भाइयों, हाँ जी जी। भाइयों, मैं तुमसे उस तरह कलाम ना कर सका जिस तरह रूहानियों से, बल्कि जैसे जिस्मानियों से, और उनसे जो मसीह में बच्चे हैं। मैंने तुम्हें दूध पिलाया और खाना ना खिलाया, क्योंकि तुमको उसकी बर्दाश्त ना थी, बल्कि अब भी बर्दाश्त नहीं, क्योंकि अभी तक जिस्मानी हो। इसलिए कि जब तुम में हसद और झगड़ा है, तो क्या तुम जिस्मानी ना हुए और इंसानी तरीक पर ना चले? इसका मतलब कि इंसानी तरीक पर चलने वाला कौन है? वो शख्स जो है वो शिकस्त खुर्दा ज़िंदगी गुजारता है। यानी तीसरा दायरा आप देख रहे हैं कि कुर्सी पर कौन है? खे यानी ईगो, और अल-मसीह ज़िंदगी के अंदर है, लेकिन कहाँ पर है? कुर्सी से नीचे। और वो कहता है कि मैं तुमसे उस तरह कलाम नहीं कर सका जैसे रूहानियों से, बल्कि जैसे जिस्मानियों से। इसलिए हमारे सरमन जो है वो जिस्मानी लोगों को खुश करने के लिए कि सख्त ग़ज़ा उनको क्या नहीं होती? हज़म नहीं होती। या ऐसा कर लेते हैं, कंप्यूटर से रिलेटेड सारे लोग हैं कि कंप्यूटर में वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल ही नहीं हुआ, उसने वो सॉफ्टवेयर तो काम क्या होगा, है ना, जब तक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल ना हो। इसी तरह जिस्मानी आदमी वो उसको लॉलीपॉप खिलाएं। अगर आपने सरमन दे दिया ना कि भाई वो कुर्बानी का गोश्त खान या ना खाना कोई फ़र्क नहीं पैदा, कहाँ पर फ़र्क पड़ता है? उन्हें कहना लो जी काम ख़राब हो गया, बहुत मसला हो गया, है ना, मसला हो गया ना, क्योंकि आपने उसको लॉलीपॉप देनी है ताकि आपके ख़िलाफ़ ना हो। तो आपने क्या कहना है? जिन्ने कुर्बानी दे गोश्त खादा है कुर्बानी दे नेड़े ना आयो भाई, है ना। लोग बड़े कहेंगे ओ हो ज़बरदस्त बंदा है। क्या किया उसने? क्या किया कि जिन्होंने वो गोश्त खाया था वो क्या ना करें, वो हम उसका क्या करेंगे? नारे मारेंगे ना। लेकिन गौर करें कि आपने क्या किया। लॉलीपॉप नहीं देनी। शख्सी गुनाह क्या है इसको हमने समझना है। इन तीन दायरों में से शख्सी गुनाह
जिसका इंसान शिकार, ये पहला जो है ये मारूसी गुनाह और शख्सी गुनाह दोनों के ज़ेर साया है। जो नफसानी आदमी है वो क्या है, शख्सी गुनाह और ओरिजिनल सिन और पर्सनल सिन दोनों ही उस पर क्या है, काबज़ है। दूसरा शख्स मारूसी गुनाह के असरात उसकी ज़िंदगी में है लेकिन उस पर इख्तियार नहीं रखते, बल्कि कौन रखता है, अल मसीह उसकी ज़िंदगी पर क्या रखता है, इख्तियार रखता है। अभी का हाँ जी, नहीं वो उधर नहीं जाना। और तीसरा क्या है, जिसमें मरूसी गुनाह के असरात थे जिसके सबब से शख्सी गुनाह ने क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। जब तक हम जिंदा हैं मरूसी गुनाह के असरात हमारे अंदर रहेंगे, है ना जी, आगे। अच्छा, जब तक कि हम क्या है, जिंदा हैं, और जब तक हम जिंदा हैं हमें जो दरमियान वाला दायरा है उसमें गौर कीजिए कि अल मसीह की ज़रूरत रहेगी ताकि हमारी फितरत तब्दील होती चली जाए। मरूसी गुनाह के सबब से शख्सी गुनाह में गिरना जो है वो हमारी ज़िंदगी में से खारिज हो जाए, और वो हम ज़रूर अगली दफ़ा उसका माफ़ी और इलाज देखेंगे। लेकिन आज हमने समझा क्या है, गुनाह क्या है, क्या समझा है, गुनाह क्या है, और उसका माफ़ी और इलाज डेफिनेट सरमन का हिस्सा होगा। जो भी आप सरमन जब भी आप तैयार करें उसमें क्या होगा, माफ़ी और इलाज। सौखा इलाज नहीं दसना, गुनाह छड़ दो, है ना, सिगरेट नहीं पीनी, शराब नहीं पीनी, कुर्बानी का गोश्त नहीं खाना, ये नहीं करना, वो ये क्या है, सौखा इलाज। ये ऐसा डॉक्टर है जो पैसे फीस पूरी ले लेकिन क्या करे ज़ुबानी इलाज बताया करे। आइए हम अपने सरों को झुकाएं और उसके बाद वक्त होगा कि हम सवाल कर सकें। सो हम अपने सरों को झुकाते हैं और भाई नसीब के साथ मिलकर आखिरी दुआ करते हैं। खासकर आज के दिन के लिए तेरा शुक्र करते हैं कि तूने हमें ये मौका बख्शा हम तेरे पाक कलाम में से सीखे। खुदा पाक खुदा जो कुछ हमने तेरे पाक कलाम में से सीखा वो हमारे ज़हन में शी कर, वो हमारी ज़िंदगी में काम करे, और खुदा पाक खुदा हम हमेशा तेरे प्यारे बेटे यीशु मसीह को अपनी ज़िंदगी का इख्तियार दें ताकि वो खुदा पाक खुदा हमारी ज़िंदगी में काम करे, हमारी तकदीस करे और हमारे फितर को चेंज करे। खुदा उनको अपने पाक से हमारी तकदीस कर, आगे खुदा पाक खुदा हम तुझ में रहते हुए सब कुछ मांग कर आमीन। वक्त होगा कि हम अगर कोई क्वेश्चन अभी भी को बीच में से, क्योंकि ये टॉपिक छोटा तो नहीं था, बड़ा अहम टॉपिक है और जाके सही जागनू असी हाथ पाना है ताकि तो अगर क्वेश्चन हो तो आप ऑल क्लियर। वो जो पहले एक वक्फा है इसमें सेब और आबल एक वक्फा है कि जनरेशन बढ़ती है, ठीक है। तो जो जनरेशन पहली थी उसमें तो ये सारी फितरत मौजूद थी, फितरत तो निकली है आगे जाके जब गुनाह किए आबल ने। क्या वो नस्ल फितरत से पाली गई या सारी हुई? जी ज़बरदस्त क्वेश्चन। जैसे हमने रोमियो का पहला बाब 13 आयत पढ़ी, जी जी हाँ जी वो फिर पढ़ी है, तो वो इसका बिल्कुल इजी आंसर है, सारे के साथ निकले हाँ। सारे। और जी पढ़ दीजिए, फिर मैं और भी इसके बारे में जी। और ए भाइयों, मैं इससे तुम्हारा नावाकिफ रहना नहीं चाहता। मैंने बारहा तुम्हारे पास आने का इरादा किया ताकि जैसा मुझे और गैर कौमों में फल मिला वैसा ही
तुम्हें भी मिले। नहीं, वो ये नहीं कि एक फिर वो पढ़ लेते हैं रोमियो में से 5वें बाब में से। 5वां बाब जी। रोमियो पहले क्या कौन सा पढ़ा है? रोमियो पढ़े। रोमियो पढ़ा, ठीक है। 5वें बाब में अगर आप रोमियो का ख़त पढ़ेंगे तो उसमें आपको ग़ज़ब इलाही और एक ही शख्स के हाँ जी जी पढ़िए जी। बस जब हम उसके खून के बायस अब रास्तबाज ठहरे तो उसके वसीला से ग़ज़ब इलाही से ज़रूर ही बचेंगे। और अगर हम इसकी 5वें बाब की जो है वो पूरा पढ़ें इसमें से तो आपको मालूम होगा कि एक शख्स के सबब से, हाँ जी, और ये आगे लिखा है इसी बाब में कि एक शख्स के 12वीं आयत, बस जिस तरह एक आदमी के सबब से गुनाह दुनिया में आया और गुनाह के सबब से मौत आई और यूं मौत सब आदमियों में फैल गई, यानी एक शख्स के। और जब आदम लफ्ज़ इस्तिलाह इस्तेमाल होती है तो उसका मतलब है कि नस्ल इंसानी का नुमाइंदा। और गुनाह के असरात क्या थे? गुनाह के असरात चले 3 बाब की 17वीं आयत देखिए। 3 बाब पैदाइश 3 बाब 17वीं आयत जी, उसका दूसरा हिस्सा देखिए जी। 17वीं आयत में से और आदम से उसने कहा क्योंकि तूने अपनी बीवी की बात मानी और उस दरख्त का फल खाया जिसकी बाबत मैंने तुझे हुक्म दिया ताकि उसे न खाना, हाँ जी, इसलिए ज़मीन तेरे सबब से लानती हुई। हाँ जी, मुशक्कत के साथ तू अपनी उम्र भर उसकी पैदावार खाएगा। क्या हुआ? ज़मीन तेरे गुनाह के सबब से क्या हुई? लानती हुई। इसका मतलब क्या हुआ कि हर चीज़, ज़मीन की हर चीज़, सिर्फ इंसान नहीं, नस्ल इंसानी नहीं, बल्कि ज़मीन की हर चीज़। और 6 बाब की देखिए 7वीं आयत, और इस 5वीं आयत से पढ़ लीजिए। और खुदावंद ने देखा कि ज़मीन पर इंसान की बदी बहुत बढ़ गई है और उसके दिल के तसव्वुर और ख्याल सदा पूरे नहीं होते हैं। तब खुदावंद ज़मीन पर इंसान को पैदा करने से मजबूर हुआ और दिल में गम किया। और खुदावंद ने कहा कि मैं इंसान को जिसे मैंने पैदा किया रोए ज़मीन पर से मिटा डालूंगा, इंसान से लेकर हैवान और रेंगने वाले जानदार और हवा के परिंदों तक, क्योंकि मैं उनके बनाने से मरूर हूँ। क्या हुआ? उनके बनाने से क्या हुआ? 7 जानवर पे हर चीज़। खुदा इंसान को बनाने से क्या हुआ? मलूल, गमगीन हुआ। ब्लेसिंग जाती रही, बरकत चली, ज़िंदगी चली गई। और ये जो ग्लोब है, ये जो ज़मीन है, उसके साथ चांद सितारे भी बीच में ही आ गए। नया आसमान और नई ज़मीन की बात। सूरज चांद सब मिटा दूंगा मैं और फिर क्या करूंगा? नए होंगे। इसका मतलब है कि गुनाह जो ओरिजिनल से उसके असरात यहाँ से लेकर खुदा के अंदर तक गए। खुदा इंसान को बनाने से गमगीन हुए। कितना खुश था खुदा कि उसने बनाया, कहा कि अच्छा है, ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है। इंसान को देख के कहा बहुत अच्छा है, आओ हम इसे अपनी सूरत शबीह पर बनाएं। और उसकी सूरत शबीह उसने बिगाड़ दी इंसान ने। तो खुदा तो गमगीन होना ही होना था कि नस्ल इंसानी जो थी वो बर्बाद हो गई। और आगे चलकर हम ज़रूर इसका जो इलाज और माफ़ी है उसको भी और ज़्यादा बेहतर तौर पर समझेंगे। कोई और क्वेश्चन? ठीक हो गया? ठीक हो गया? ऑल क्लियर? ठीक। आइए हम फिर एक दफ़ा अपने सरों को झुकाते हैं और दुआ करते हैं। खुदा की सिखाई दुआ में शरीक हो। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस हम अपने कसूर को मुआफ़ करते हैं, तू भी हमारे कसूर माफ़ फरमा। इस वाला बल्कि बुराई से बादशाही और कुदरत जलाल हमेशा तेरे। आमीन। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुद्स की बरकत और सलामती, खुशी, इत्मीनान और ओरिजिनल सिन और पर्सनल सिन से
महफूज ज़िंदगी अब से अब तक आपके साथ इस शहर की कलीसिया और आलमगीर कलीसिया के साथ भी रहे। आमीन। रिकॉर्डिंग जी मैं भेज दूँ।